جب ہم قیامت کے دن کا ذکر سنتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دن جب زمین ہل اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ہر انسان اپنے کیے ہوئے ہر عمل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن اس ڈر کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی امید بھی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت یعنی سفارش۔ قیامت کا دن کتنا مشکل ہوگا۔ قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں کو بھی بھول جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے دور ہو جائے گی۔ جب ہم جہنم کا نام سنتے ہیں تو اکثر اسے صرف ایک ڈراونا لفظ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جہنم کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک سچائی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار سمجھایا تاکہ ہم اس راستے سے بچ سکیں جو ہمیں وہاں لے جاتا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے۔ یہ صرف آگ کا نام نہیں بلکہ درد، پچھتاوا اور بے بسی کا نام ہے۔ جہنم وہ انجام ہے جہاں انسان اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ کا حساب دے گا۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ سوچئے، دنیا کی آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر غلطی سے ہاتھ جل جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آگ کیسی ہوگی جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہو؟ وہ آگ صرف جلائے گی نہیں بلکہ بار بار انسان کو جلا کر پھر سے زندہ کر دے گی تاکہ سزا ختم نہ ہو۔ جہنم میں انسان کی حالت۔ جب انسان جہنم میں جائے گا تو وہ صرف درد میں نہیں ہوگا بلکہ سب سے زیادہ پچھتاوے میں ہوگا۔ وہ چلائے گا، روئے گا اور کہے گا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا ہی وہ جگہ تھی جہاں انسان کو موقع دیا گیا تھا۔ پچھتاوا جو کام نہیں آئے گا۔ جہنم میں سب سے بڑی سزا صرف آگ نہیں ہے بلکہ وہ پچھتاوا ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دے گا۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، وہ ان لمحوں کو یاد کرے گا جب وہ گناہ سے بچ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچا۔ وہ سوچے گا، کاش میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ لیکن وہ کاش صرف ایک افسوس بن کر رہ جائے گا۔ گناہ جو ہمیں وہاں تک لے جاتے ہیں۔ جہنم اچانک نہیں ملتی، یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، ہر حرام کمائی، ہر چھوڑی ہوئی نماز، یہ سب مل کر ایک راستہ بناتے ہیں، اور وہی راستہ آخر میں جہنم تک جاتا ہے۔ آج کا دور اور گناہ۔ آج گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ موبائل کی ایک کلک اور انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ غلط چیزیں دیکھنا، لوگوں کی برائی کرنا، وقت برباد کرنا، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی اس راستے پر چل پڑتا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، بالکل ہے، اور وہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں بلکہ بچنے کا راستہ بھی دیا ہے۔ توبہ۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر پچھتائے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ جنت اور جہنم دو راستے۔ ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ جنت کا راستہ مشکل لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں صبر ہے، نماز ہے، سچائی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کے لیے خوشی ہے۔ دوسری طرف جہنم کا راستہ آسان لگتا ہے کیونکہ اس میں گناہ ہے، آزادی ہے، نفس کی خواہشیں ہیں، لیکن اس کا انجام درد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم ڈر جائیں بلکہ اس لیے کیا کہ ہم بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی امت جنت میں جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ہمیں چیتاونی دی۔ آج کا فیصلہ۔ آج ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو ہمیں جنت تک لے جائے گا، یا پھر ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جائیں گی۔ اگر جواب صحیح نہیں ہے تو ابھی وقت ہے بدلنے کا۔ آخری بات، یاد رکھیے، جہنم کی حقیقت کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سچائی ہے جو ہر انسان کے سامنے آئے گی۔ تو آج ہی فیصلہ کریں، گناہ چھوڑ دیں، نماز شروع کریں، اللہ سے جڑ جائیں، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہیں بلکہ سکون ملے۔
अगर ये बयान दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो दिल में अपने आप मोहब्बत, सुकून और इज्जत का एहसास पैदा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर इंसान, हर मखलूक, यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए थी। रहमत क्या होती है? रहमत का मतलब सिर्फ दया या तरस नहीं होता। रहमत का मतलब है ऐसी मोहब्बत और करुणा जो बिना किसी शर्त के हो, और यही चीज़ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर जगह दिखाई देती है। दुश्मनों के लिए भी रहमत। सोचिए, जो लोग आपको पत्थर मारें, आपका मजाक उड़ाएं, आपको तकलीफ दें, उनके लिए आपका क्या रवैया होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कुछ और था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने आपको पत्थरों से लहू लुहान कर दिया। आपके जूते खून से भर गए, आपका शरीर जख्मी हो गया। उस वक्त फरिश्ते आए और कहा, अगर आप चाहें तो हम इन लोगों को खत्म कर दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हो सकता है उनकी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला हो। ये है रहमत, जो बदले में बदला नहीं बल्कि दुआ देती है। गुनहगारों के लिए रहमत। हम सब गुनाह करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? आप गुनाह से नफरत करते थे, लेकिन गुनाहगार से नहीं। एक आदमी बार बार गुनाह करता था, लोग उसे बुरा कहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुरा मत कहो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये हमें सिखाता है कि किसी को उसकी गलती की वजह से हमेशा के लिए जज नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बच्चों के लिए बहुत नर्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ हंसते थे, उन्हें प्यार करते थे। एक बार एक बच्चे की चिड़िया मर गई, वो बहुत दुखी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसे प्यार से दिलासा दिया। सोचिए, एक नबी जो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदार है, वो एक छोटे बच्चे के दुख को भी महसूस करता है। जानवरों के साथ रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी जानवर पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। एक औरत को सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने एक बिल्ली को बंद करके रखा और उसे खाना नहीं दिया, और एक आदमी को जन्नत मिली क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। ये दिखाता है कि इस्लाम में हर जान की अहमियत है। उम्मत के लिए रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनके लिए दुआ करते थे, यहाँ तक कि जब आप आखिरी वक्त में थे तो आपके लबों पर क्या था? उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए फिक्र कर रहे थे। क़यामत के दिन की रहमत। क़यामत का दिन बहुत कठिन होगा, हर इंसान अपने बारे में सोच रहा होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी अपनी उम्मत की फिक्र करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करेंगे, अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। ये है असली मोहब्बत जो आखिरी लम्हे तक साथ देती है। हमारी जिम्मेदारी। अब सवाल ये है कि क्या हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम उनकी सिखाई हुई बातों पर चलते हैं? क्या हम दूसरों के साथ रहमत का व्यवहार करते हैं? क्या हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। नबी का पैगाम। नबी का पैगाम बहुत साफ था। लोगों से मोहब्बत करो, सच्चाई अपनाओ, दूसरों की मदद करो, अल्लाह से जुड़ जाओ। अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी। आखिरी संदेश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। जितना हम उसमें उतरेंगे उतना ही सुकून पाएंगे। तो आज ही फैसला करें, हम भी रहमत वाले बनेंगे, हम भी लोगों को माफ करेंगे, हम भी मोहब्बत फैलाएंगे, ताकि हम सच्चे मायनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। अगर हम उस पर चलें तो हम कभी भटक नहीं सकते। याद रखिए, रहमत बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। अगर ये बयान दिल को छू गया हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए,
अगर कोई आकर ये कह दे कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ जाता है, तो क्या आप रुकेंगे? क्या आप पलटकर देखेंगे? या फिर आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे क्योंकि वो आपको आसान लगता है? आज का ये बयान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हर इंसान को अपना चेहरा देखना है। नबी की चेतावनी। एक दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बीच बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा नर्म होता था, लेकिन जब बात आखिरत की आती तो आपकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती। उस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा और एक ऐसी बात फरमाई जिसे सुनकर हर दिल कांप गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपना जहन्नुम का रास्ता देख ले। जिसमें ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक खुली चेतावनी थी, एक ऐसा इशारा जो हर उस इंसान के लिए था जो गुनाह में डूबा हुआ है और फिर भी खुद को सही समझता है। गुनाह जो हमें महसूस ही नहीं होते। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो गुनाह करता है लेकिन उसे गुनाह समझता ही नहीं। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, पीठ पीछे बुराई करना, नमाज को हल्का समझना, ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। हम कहते हैं सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा यही छोटे छोटे गुनाह एक दिन हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो अपना जहन्नुम का रास्ता देख ले। जहन्नुम सिर्फ एक शब्द नहीं, जहन्नुम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वहाँ की आग इतनी भयानक है कि दुनिया की आग उसके सामने कुछ भी नहीं। वहाँ इंसान चीखेगा, रोएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। पछतावा जो काम नहीं आता। जब इंसान जहन्नुम में जाएगा तो वो कहेगा, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, मैं अब कभी गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ पछतावा होगा और दर्द। आज की हकीकत। आज हम किस चीज़ में खोए हुए हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया, दुनिया की दौड़। हमने नमाज को पीछे छोड़ दिया, हमने अल्लाह को भूल दिया। लेकिन मौत हमें नहीं भूलेगी, वो अचानक आएगी और हमें उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ सिर्फ हमारे अमल काम आएंगे। तौबा का दरवाज़ा। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है। आज भी अगर हम चाहें तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। बदलाव अभी से। आज से नमाज की पाबंदी शुरू करें, झूठ छोड़ दें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हराम से दूर रहें और सबसे ज़रूरी दिल से अल्लाह से जुड़ जाएं। आखिरी बात याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमारी भलाई के लिए है। अगर उन्होंने कहा वो अपना जहन्नुम का रास्ता देख ले तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें बचाने के लिए है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें एक ऐसी शख्सियत नज़र आती है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज़ मोहब्बत, रहमत और हिदायत से भरा हुआ था। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी कुछ बातें ऐसी भी थीं जो इंसान को अंदर तक हिला देती थीं। ऐसी चेतावनियाँ जो हमें गुनाहों से बचाने और सही रास्ते पर लाने के लिए थीं। आज हम उसी चेतावनी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी चेतावनी जो सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज हम सब के लिए है। चेतावनी का मकसद क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी को डराने के लिए नहीं बोले। आपकी हर बात के पीछे एक गहरा मकसद होता था, इंसान को बचाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गुनाह के बारे में सख्त लहजे में बात करते तो उसका मतलब ये होता था कि वो गुनाह इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उनकी उम्मत उस रास्ते से दूर रहे जो उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेतावनी एक अलार्म की तरह थी जो हमें जगाने के लिए दी गई थी। गुनाह की शुरुआत कैसे होती है? इंसान कभी भी एकदम से बड़ा गुनाह नहीं करता। हर गुनाह की शुरुआत छोटी होती है।
पहले इंसान एक छोटी सी गलती करता है, फिर उसे नज़रअंदाज करता है, फिर वही गलती आदत बन जाती है और धीरे धीरे वही आदत इंसान को ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खतरे को समझाया ताकि हम शुरुआत में ही रुक जाएं। दिल का सख्त हो जाना। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? दिल का सख्त हो जाना। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसका दिल धीरे धीरे काला होने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसे गुनाह गुनाह लगता ही नहीं। झूठ बोलना आम हो जाता है, नमाज छोड़ना मामूली लगने लगता है, दूसरों का हक मारना आसान हो जाता है। यही वो हालत है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाना चाहते थे। जहन्नुम की हकीकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम का जिक्र सिर्फ डराने के लिए नहीं किया, बल्कि उसकी हकीकत बताने के लिए किया। जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने किए हुए गुनाहों का अंजाम देखेगा। वहां की आग इतनी भयानक है कि दुनिया की आग उसके सामने कुछ भी नहीं। वहां इंसान चीखेगा, रोएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज का इंसान और लापरवाही। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज़ आसान हो गई है, गुनाह करना भी। मोबाइल की एक स्क्रीन और इंसान ऐसे ऐसे गुनाह कर बैठता है जिनका उसे एहसास भी नहीं होता। हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते। हम दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए बहुत कम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेतावनी आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पहले थी। तौबा, वापसी का रास्ता। लेकिन इस्लाम सिर्फ डराने का नाम नहीं है, ये उम्मीद का नाम भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ गुनाहों से डराया, वहीं तौबा का रास्ता भी बताया। अगर इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर पछताए और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है, चाहे उसके गुनाह कितने भी बड़े क्यों न हों। हमारी जिम्मेदारी। अब सवाल ये है, हम क्या करें? सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम किसी का हक मारते हैं? क्या हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है बदलने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप चाहते थे कि उनकी उम्मत जन्नत में जाए और जहन्नुम से बचे। इसीलिए आपने हमें चेतावनी दी ताकि हम संभल जाएं। आखिरी संदेश। आज अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो नुकसान हमारा ही है, लेकिन अगर हम उनकी चेतावनी को समझ लें और अपनी ज़िंदगी बदल लें तो यही हमारी कामयाबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेतावनी कोई साधारण बात नहीं है, ये एक रहमत है, एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो आज ही फैसला करें, क्या हमें वही रास्ता चुनना है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, या फिर वही रास्ता जो हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। लेकिन इस डर के साथ साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफाअत यानी सिफारिश। क़यामत का दिन कितना मुश्किल होगा। क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं होगा। ये वो दिन होगा जब इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी भूल जाएगा। कुरान बताता है कि उस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ अपने बच्चे से दूर हो जाएगी, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। सूरज बहुत करीब होगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक। हर तरफ डर ही डर होगा, कोई सहारा नहीं होगा, लोग मदद के लिए भटकेंगे। जब हालात और मुश्किल हो जाएंगे तो लोग किसी ऐसे की तलाश करेंगे जो उनकी मदद कर सके। वो एक एक करके बड़े बड़े नबियों के पास जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन हर नबी उस दिन अपनी एक गलती को याद करके कहेगा, नफ्सी नफ्सी, यानी मैं खुद को बचाऊं। कोई भी उस वक्त सिफारिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सबसे अलग। फिर लोग आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, और यही वो लम्हा होगा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी दुनिया पर जाहिर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत मेरी उम्मत।
जब सब अपने लिए सोच रहे होंगे, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सोच रहे होंगे। शफाअत का मंजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक सजदा करेंगे कि अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये वो लम्हा होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अपने चरम पर होगी। गुनाहगार उम्मत के लिए रहमत। हम सब गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए भी सिफारिश करेंगे जो गुनाहों में डूबे हुए थे, जो नमाज में कमज़ोर थे, जो गलत रास्तों पर चले गए थे। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जहन्नुम से निकालना। हदीसों में आता है कि कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चले जाएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। धीरे धीरे हर उस इंसान को निकाल लिया जाएगा जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान होगा। सोचिए, कैसी रहमत होगी वो जब इंसान जहन्नुम से निकलकर जन्नत की तरफ जाएगा। जन्नत की तरफ सफ़र। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो वो खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होगा। हर तरफ सुकून होगा, हर तरफ खुशी होगी, और ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और दुआओं का नतीजा होगा। हमारे लिए सबक। अब सवाल ये है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिले, या हम ऐसे गुनाह कर रहे हैं जो हमें उस रहमत से दूर कर देंगे? क्या करें? अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मिले, तो हमें आज से ही कुछ बदलाव करने होंगे। नमाज की पाबंदी करें, सच्चाई अपनाएं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, गुनाहों से तौबा करें, और सबसे ज़रूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमसे ज़्यादा चाहते हैं। हम अपनी गलतियों में उलझे रहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाने की फ़िक्र करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी उम्मत जहन्नुम से बचे और जन्नत में जाए। आखिरी संदेश। क़यामत का दिन ज़रूर आएगा, ये एक सच्चाई है, लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। तो आज ही फैसला करें, क्या हम उस रहमत के हकदार बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी ज़िंदगी को बदलें और अल्लाह के करीब हो जाएं। क़यामत का दिन भले ही बहुत कठिन होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उस दिन को आसान बना सकती है। बस हमें उनकी बताई हुई राह पर चलना होगा। अगर ये बयान दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है आपकी वजह से किसी को उस दिन की रहमत नसीब हो जाए। आमीन। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब गुनाहगार हैं। कोई छोटा गुनाह करता है, कोई बड़ा, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो दिल को सुकून देती है, और वो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों के लिए भी है। इंसान और उसकी कमज़ोरियाँ। इंसान फरिश्ता नहीं है, उससे गलतियाँ होती हैं। कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी नफ्स के पीछे भागते हुए वो ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि अगर तुमसे गलती हो गई तो अब सब खत्म हो गया, बल्कि इस्लाम कहता है वापस आ जाओ। नबी का अंदाज, सख्ती नहीं, रहमत। नबी का तरीका ये नहीं था कि गुनाहगार को धक्का देकर दूर कर दिया जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने करीब लाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह से नफरत करते थे, लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान गलती करके आपके पास आया। लोग चाहते थे कि उसे सज़ा दी जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उसकी हालत को समझा, उसके दिल को देखा। तौबा करने वालों के लिए खुशखबरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उससे इतना खुश होता है जैसे कोई इंसान अपनी खोई हुई चीज़ वापस पा ले। सोचिए, हम गुनाह करते हैं और फिर भी अगर सच्चे दिल से लौट आएं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। ये कितनी बड़ी रहमत है। गुनाहगार लेकिन उम्मीद वाला दिल।
सबसे अच्छी बात ये है कि इस्लाम उम्मीद को कभी ख़त्म नहीं करता। अगर इंसान के दिल में ये एहसास है कि मैंने गलत किया, तो यही एहसास उसकी वापसी की शुरुआत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी शैतान का रास्ता है। गुनाह और उसका असर। गुनाह सिर्फ एक काम नहीं होता, वो दिल पर असर डालता है। हर गुनाह दिल पर एक दाग छोड़ता है। अगर इंसान तौबा कर ले तो वो दाग साफ हो जाता है, लेकिन अगर वो गुनाह करता रहे तो दिल सख्त हो जाता है और फिर उसे सही गलत का फ़र्क समझ नहीं आता। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार समझाते थे कि गुनाह से बचो। आज का दौर, आसान गुनाह। आज के समय में गुनाह करना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब ने गुनाहों को हमारे करीब ला दिया है। अब इंसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गुनाह खुद उसके पास आ जाता है। लेकिन यही वो वक्त है जब हमें और ज़्यादा सावधान रहना होगा। क़यामत के दिन की रहमत। क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने गुनाहों से डर रहा होगा, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उम्मती उम्मती, यानी मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आप उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो गुनाहगार थे। अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करेंगे। जहन्नुम से निकलने की उम्मीद। हदीसों में आता है कि कुछ गुनाहगार मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। ये है रहमत जो आखिरी लम्हे तक साथ देती है। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमें भी ये रहमत मिले, तो हमें कुछ बातें अपनी ज़िंदगी में लानी होंगी। सच्चे दिल से तौबा करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और सबसे ज़रूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमसे ज़्यादा चाहते हैं। हम अपनी गलतियों में उलझे रहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाने की फ़िक्र करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी उम्मत जहन्नुम से बचे और जन्नत में जाए। आखिरी संदेश, अगर आप गुनाहगार हैं तो निराश मत होइए। आपके लिए भी दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा, रहमत का दरवाज़ा। बस एक कदम उठाइए और अल्लाह की तरफ लौट आइए। गुनाहगार होना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि इंसान गुनाह करके भी तौबा न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर उस इंसान के लिए है जो वापस आना चाहता है। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी वजह से किसी को उस दिन की रहमत नसीब हो जाए। आमीन।